इनके तो घर का घड़ा है, हम्म, तो आपने कैसे पकड़ लिया घड़ा के? जट साहब इधर खड़ा थे, थोड़ा इधर करो। एक बात, और ये आइडिया जो है, जी ये तो देखें नाजरीन, ये 55-56 साल पहले लेजेंडरी आशिक जट साहब की अल्हम्दुलिल्लाह। ये दरियाफ्त है ये घड़ा। हम्म, और उससे पहले सोनी से मंसूब रहा घड़ा। तो एक तो ये बताइए कि 2025 वाला घड़ा जो है, हम्म। अब उसके टूटने का खतरा तो नहीं है, खदशा तो नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से घड़ा आया मार्केट में, और चूंकि ये घड़ा डिजिटल भी है साथ साथ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रिया अदा करूँगी, अपनी फैमिली का, स्पेशली अब्बास भाई का, क्योंकि इन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार किया, सपोर्ट किया। और जैसा कि आपने पहले पूछा कि ये आइडिया किसका था, तो ये आइडिया मैंने इनके साथ डिस्कस किया। मैं एक दिन स्क्रॉलिंग कर रही थी नेट पे बैठ के, तो मेरे सामने अचानक घड़ा आ गया। जी जी। तो अब ज़ाहिर बात है, आर्टिस्टिक माइंड तो मैं हूँ, मैंने उसको सुना, मैंने उसका आइडिया दोबारा से, मैंने कहा अगर इसको दोबारा से बनाया जाए, क्योंकि उसमें एक ख़ास बात ये थी कि जो आशिक जट साहब ने, इनके वाला साहब ने गाया, वो सोलो था। और इस बार जो हुआ है वो ड्यूट हुआ है, हाँ, मेरा और अब्बास जी का। असल में जो हकीकत है ना वो ये है कि ये जो गाना है ये असल में है ड्यूट, क्योंकि ये जो हमारा अपना शहर गुजरात जो है ना पंजाब का, जो वहाँ पे जो अपना सोनी थी उसकी राइज थी ना, तो असल में जो है ना ये सोनी का और घड़े का सवाल जवाब था। जब ये अबू ने भी रिकॉर्ड किया तो उन्होंने कोशिश की, उनकी 1-2 इनके लोगों से बात उन्होंने की, जो उस दौर के बड़े लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा कि अड़िया आशिक होर स्टाइल है ਤੁਹਾਡਾ फोक दा स्टाइल है, हम्म, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਘੜੇ ਨੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। 2005 ਦੀ ਸੋਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਜੀ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ये तो बताएं ना जरा। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਗਾ ਜੀ ਜਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਸੀ कि नहीं सी। आय हाय हाय, और मैं और मर तो जावां सानू भी दिल शक खा ही है। के। क्योंकि 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 अक्सर लैला दी फोटो वेख के शक होया, हाँ जी, हाँ जी। सोहनी हुण मैनू वेख के यकीन कर लेना कि सोहनी सोहनी होएगी। लेकिन वरना प्यार तो दिल उठ गया सी हाँ लैला जी। दी फोटो वेख के लेकिन कि जरा- इस लैला पीछे कैस ने जान हाँ। ਦਿੱਤੀ है। लेकिन ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਗਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦਸੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਡਿਜੀਟਲ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਲਗਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਬੜਾ ਰਿਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟ ਸੌਂਗ ਕਰੀਏ। ड्यूट करिए। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਆਈਟਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਕ ਟੇਲਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਓ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਲਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। घड़े पे और इन गिलो शिकवों पे दोबारा हम वापस आते हैं। जी जी। जरा आपसे थोड़ी सी मैंने आज जी डिस्कशन ये करनी थी, मौका पाके जी जी, मुश्किल आप काबू आई। हमेशा की तरह। आप से पहले जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में मलका तरन्नुम नूरजहां जो है, जी उन्होंने पहले अदाकारी की, जी। फिर गुलूकारी की।
इसी तरह की लता जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने एक दौर में अदाकारी की। मर्दों में जो है ना काफ़ी नाम होंगे, लेकिन किशोर साहब ने वो प्रोमिनेंट जो है ना फिगर है। वो बतौर हीरो जी एक्टर भी थे। पहले आए और फिर बिल्कुल। जो जो पॉपुलर फिर सिंगर हुए। जी बिल्कुल। तो आपने जो इसमें एक नाम और ऐड कर लें, मुसर्रत नज़ीर साहिबा। मुसर्रत नज़ीर, जी अच्छा हाँ जी जी। ठीक है, बिल्कुल वो भी हो गई। बिल्कुल। लॉन्गो अच्छा, अच्छा। आपने जो अदाकारी छोड़ी इसलिए नहीं कह सकता, अभी तो आप काम कर रही हैं, जी। कभी भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता तो आप कर लेंगी। जी जी। जी जी लेकिन जब छोड़ा आपने, थिएटर भी छोड़ा, अगर टीवी छोड़ा, फिल्म छोड़ी और बड़ी पीक पे आपने छोड़ दिया। आज वाला थिएटर नहीं था। आप तो खैर आज भी बुराई नहीं सुनती थिएटर की, लेकिन माफी के साथ वो थिएटर था जिसे हमने कवर किया। आपका ही प्ले था गालबन, जिसमें बानो कुदसिया अपा और अशफाक सब देख रहे थे बैठ के, और हम सारा मीडिया हम उसको कवर कर रहे थे। वाह वाह ये वाह। ऑडियंस थी। जी जी ठीक है जी जी। तो सबसे पहले अदाकारी छोड़ने की वजह आज बताएं जरा खोल के। आज जो कि घड़ा जो है वो सच का एक सिंबल है, बेशक। तो आज सच ही चलेगा। नहीं नहीं, मैंने पहले भी हमेशा जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी, और मेरी ज़िंदगी जो है वो एक खुली किताब की तरह है। और हमेशा जब भी कभी ऐसी बात हुई तो सबसे पहले मैं पहुँची कंप्लेंट्स लेके, जी ये वहाँ पर ये चीज़ हो रही है, इसको चेक किया जाए। लेकिन आपने बात की कि मैंने अदाकारी छोड़ी, मैंने अदाकारी नहीं छोड़ी, ना ही मैंने किसी मीडियम को गुड बाय कहा, लेकिन मैंने अपने करियर को स्विच ज़रूर कर लिया, क्योंकि आज भी जो मेरा दिल थिएटर के लिए धड़कता है वो शायद किसी और चीज़ के लिए नहीं धड़क सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह ने जो कुछ भी नामकाम दिया, टेलीविज़न और फ़िल्म्स तो मैं कर ही रही थी, लेकिन वो जो एक फ़नकार की जो तशनगी होती है ना कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो पीक पॉइंट जो है ना वो स्टेज से ही मिला। इसलिए मेरे दिल में हमेशा इसके लिए इज़्ज़त रहेगी, क्योंकि मेघा का वजूद ही सैयद इफ़ज़ाल अहमद साहब के ड्रामा घुंघरू गिरा शरीफों से ही वजूद में आया वाह है। वाह तो वाह। इसलिए जो दुनिया स्टेज की कताला है, वो दुनिया स्टेज से कभी अलग नहीं हो सकती। तो बाकी बात वही आ जाती है कि हम अगर कहें कि उस दौर का ड्रामा और इस दौर का ड्रामा, तो आप ये देखें कि तब रेडियो का दौर था, आज मोबाइल का दौर है। यकीनन इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, जहाँ पर अच्छी भी आई होंगी और कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आई होंगी, लेकिन उसमें हम ये नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल ही हर बंदे को बुरा कहना शुरू कर दें। वहाँ बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बद से बदनाम बुरा, तो वो चीज़ें ज़रा खुल के सामने आ गई। सोशल मीडिया पे उसका बहुत ज़्यादा गलत तरीके से भी इस्तेमाल हुआ और कुछ लोगों ने किया भी। तो मैंने तब भी ये कहा था कि अगर हम उस ज़िम्मेदार को तब सज़ा दे देते जिसने ये स्टार्ट किया था, तो शायद आज ये नौबत ना आती। अच्छी बात लेकिन है। हम बोलते तब है जब पानी सर से गुज़र जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि देयर इज़ नेवर टू लेट, ऑलवेज़ होप फॉर द बेस्ट। तो हमें इस पर तो काम करते रहना चाहिए, क्योंकि पाबंदी लगाना या बंद करना किसी चीज़ का हल नहीं है। तो मेरा ख़्याल है द शो मस्ट गो ऑन, और आप मैंने कुछ भी तर्क नहीं किया। मैं अदाकारी भी कर रही हूँ, मैं गुलकारी भी कर रही हूँ। आप जितना भी डिफेंड कर लें थिएटर को, आपकी कोई फैमिली आती है बाहर से, जी। और उसमें बच्चियां भी हैं, खवातीन भी हैं, हुँ, हुँ। तो आपने उन्हें एंटरटेन करना है। हुँ, हुँ। पहले दिन तो घर पे खाने शाने हो गए, दूसरे दिन वो कहते जी असी जरा लाहौर वेखना है, जी, जी। तो आप कहेंगे जाके थिएटर ड्रामा देख के आए जरा। देखिए, जो मैं इस वक़्त की बात कर जी। रही हूँ, और हमारी जो कल्चर मिनिस्टर हैं आज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी लिया है। मैंने पहले भी उनके इस काम को बहुत सराहा था, और उन्होंने बाकायदा मुझे भी इस बात पर एक्नॉलेज किया था, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको कहा था कि मेघा प्लीज़ आप भी आएँ। तो मैंने कहा मैं ज़रूर उस चीज़ का हिस्सा बनूँगी जो आज़मा जी आप करेंगी। मैं इस चीज़ का हिस्सा कभी नहीं बनूँगी। लेकिन अब मकसद ये है कहने का कि एक रोल मॉडल होता है। हम कहते हैं ये करो, लेकिन हम लोगों को मिसाल क्या देंगे कि ये करें? हम दूसरों को इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। क्या हमारे गवर्नमेंट पैनल से कोई ऐसा प्ले पेश किया जा रहा है जो हम किसी को दिखा सकें? मेरा तो पहला क्वेश्चन आपसे ये अच्छा है। सवाल है, अच्छा ठीक है? सवाल। हम बिल्कुल अगर सही। किसी को कहते हैं कि भाई आप ये नहीं, आप इस को कॉपी करें, तो आपको उसके लिए एक मिसाल तो बनानी पड़ेगी ना पहले। हमारे अपने जो इदारों के हॉल्स हैं वो वीरान पड़े हैं, वो बंद पड़े हैं, और जब उन पे बात की जाए तो वो कहते हैं जी कमेटियाँ बनी हुई हैं। तो वो कमेटियाँ क्या कर रही हैं? बाकी जहाँ तक रही ड्रामे की बात, तो ऐसा भी नहीं है कि अब वहाँ पर अल्लाह माफ़ करे कोई मतलब मैं वो अल्फ़ाज़ यूज़ नहीं करना चाहती कि बहुत हो रहा है। फैमिलीज़ जा रही हैं देखने। नसीम विक्की साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे और भी बहुत सारे ये फ़नकार हैं, अजमा अच्छा काम छापे कर रहे क्यों हैं। मार रही थी फिर, आर्टिस्टों को बैन क्यों कर रही थी? अच्छी बात है खवातीन ना, को बैन क्यों कर वो रही थी? हुआ है, लेकिन कुछ अब नहीं हो उसका रहा था। हो रहा होगा, यकीनन हो रहा होगा, मैंने तो कभी नहीं कहा कि नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए भी तो हमारे इदारे मौजूद हैं ना। कोई भी इदारा किसी भी लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर नहीं है। जो लोग ज़ीरो से जिस थिएटर ने
हीरो बना दिया, और लाहौर जैसे शहर ने इन आर्टिस्टों को पता नहीं किन किन इलाकों से आके यहाँ जो है ना अपने घर बना लिए, लेविश जी। गाड़ियां आ गई इसी थिएटर से। हाँ, ऐसा ही है। बिल्कुल। आज उनका फर्ज पहले बनता है या पहले हुकूमतें आके उनको ड्रामा सिखाएंगे, ड्रामा ऐसे करना है? दिखाना तो फर्ज बनता है ना कि ऐसा करें कि नहीं। अच्छा, मान गया तो मान गया। दिखाना तो फर्ज बनता मान है ना। गया। अब जब आप एक बिल्डिंग तैयार करते हैं तो क्या उसका मॉडल पहले तैयार नहीं करते कि आर्किटेक्ट इस को आप तरह की बुलाते हैं बनेगी ना, बिल्डिंग? बिल्कुल बिल्कुल। करते हैं नहीं ना। तो घुंघरू हाँ, गिरा शरीफों में कर लेना, मैं वही एक तरह सनम खाना कर ले। तो करें ना, क्यों नहीं कर रहे, करें। और हो भी रहा है, लेकिन अब आप बिल्कुल इस कह दे कि सभी बुरा कर रहे हैं, नहीं नईम साहब, 5 ऐसा fingers नहीं है, आर सही नॉट है। इक्वल। हाँ, आप ये ना कहें कि हर कोई बुरा काम कर रहा है, अच्छा काम करने वाले भी हैं। हाँ, उसमें जो लोग थोड़ा सा अगर जिग-जैग करते हो तो आप उसको चेक एंड बैलेंस करें। हमारे इदारे मौजूद हैं, आर्ट्स काउंसिल है, होम डिपार्टमेंट है, डीसीओ डिपार्टमेंट है, कहाँ हैं ये लोग? वो आते हैं, चेक करते हैं।